Now see, we have example here. Mr. C of Calicut is trading on his own goods and also acting as an agent of Mr. B of Bangalore. Mr. C's turnover Mr. C's turnover in the financial year 17-18 is 12 lakhs in his own account. That means he's principal, and 9 lakhs on his agent, and 9 lakhs on behalf of his principal. Whether Mr. C is liable to register compulsorily under GST law, students? Tell me. See, on his own account, his turnover is 9 lakhs. Sorry. On his own account, his turnover is 12 lakhs. And on behalf of principal, it is 9 lakhs. Yes. So can you tell me 12 plus 9 is how much? 21. So 21 is below 40 lakhs, right? Yes, ma'am. Mr. C is not liable to register compulsory because his aggregate turnover is below 40 40 lakhs. Okay. So see how simple it is. No. Next, Mr. X is a dealer dealing with intrastate supply of goods and services. Has a place of business in India. Furnish the following information in the financial year 2017-18. Sales of taxable goods by head office located in Chennai, rupees 1 lakh. Okay. So say sale of taxable goods. So we will count it aggregate turnover. Yes, sale of taxable goods is counted in aggregate turnover 1 lakh. Supply of taxable services by branch office at Bangalore. Yes, we will count taxable services by branch. Okay, because taxable. Supply of exempted goods from GST. Yes, we will count exempted goods also 10,000. Export goods 2 lakhs. Yes, we will count export goods also 2 lakhs. Sales of goods acting as an agent on behalf of principal 15 lakhs. Yes, that also will be counted acting as a principal. All these points I taught you in the slide of aggregate turnover. If you want to see, you can check once again. Let me show you. See, value of export goods, exempted goods, interstate supply, and then supply on behalf of principal. All these 4 things are counted. Okay, so taxable goods, taxable services, export, and then you have on the behalf of principal or agent. Okay, so all these things will be considered. Exempted goods. Yes. So what will be your aggregate turnover? Can you tell me? 1 lakh plus 50,000 plus 10,000 plus 2 lakhs plus 15 lakhs. What is your aggregate turnover, students? Mr. X aggregate turnover is? Yes, students, by adding all of these, what will you get? Can- 18,60,000. Very good. So tell me, 18,60,000, is it below 60 or, sorry, is it below 40 or more than 40? More than 40. More than 40, 1860, bacha. 1860 is below 40, no? Below. Below 40. So because it is below 40, does not crosses the threshold limit. Therefore, Mr. X is not liable for the compulsory registration. That's what is written here. See? Did you get that? So this registration chapter is over. This was the last slide with 2 examples, which helps you understand how registration goes. Who has to take the registration? What is the threshold limit? Okay. Okay, students, did you understand? Any doubts? Yes, ma'am. Okay.
So let us quickly begin with the next one, which I have here as practical questions on computation of GST. I think I have already shared this document with you through in the Google Classroom. You can anyways check it. If you don't have it, I will share it. You know, this is last chapter, practical questions on computation of GST. So let's begin with this. Now this is question number 1. See, Mr. Mrs. X being a registered person supplying taxable goods in the following manner. Interstate supply of goods, intrastate, okay, interstate supply of goods, intrastate purchases, and then you have interstate purchases also. ITC at the beginning of the relevant tax period, GST, SGST, IGST. This is beginning of the tax period, means opening ITC is given. So when you will calculate the current year's ITC, opening will be deducted from current year's ITC. Okay, so how do you need to calculate? See, students, first see, and then I'm giving you time to, I'm giving you a maximum time, 10 minutes, 20 minutes, whatever you need, I will give it to you. But as of now, you have to just check the format and everything, how to solve this particular question. See, first of all, you will write statement showing ITC. पहले तो ITC का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. क्यों? क्योंकि जब तक ITC नहीं होगा तब तक आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैसे पता चलेगा, है ना? तो ITC कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि ओपनिंग ITC कितने दिए हुए हैं आपको. ये देखो, CGST का दिया हुआ है 130, SGST दिया हुआ है 130 और IGST दिया हुआ है 170. ये ओपनिंग है, हाँ, ओपनिंग. लेकिन जो करंट ईयर के ITC है वो कैसे निकालेंगे? पहले आउटपुट टैक्स जो आप बेच रहे हो उस पे टैक्सेस देखो क्या क्या दी हुई है. रेट ऑफ GST, sorry, CGST, SGST and IGST will be 9, 9 and 18% respectively. Inward and outward supply are exclusive of the taxes. जो इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज है उनमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूसिव है. मतलब अभी जो भी है वो आप इंक्लूड करोगे. all the conditions necessary for availing ITC has been fulfilled. Compute the GST liability by Messrs X Limited during the period and make suitable assumptions. अभी देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमेशा याद रखो हम लोग है ना ITC निकालते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे. पहले आउटपुट टैक्स निकालते हैं, उसमें से ITC माइनस करते हैं, तो आपको पता चलता है ना GST कितना पे करना है. तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमने फॉर्मेट कैसे बनाया है, क्योंकि अभी इंटरस्टेट भी है और इंट्रास्टेट भी है. तो जब भी हम लोग इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों के ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, तो कॉलम्स कैसे बनाते हैं? पहला तो पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा और अमाउंट के कॉलम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. क्यों? क्योंकि इंट्रास्टेट मतलब 2 टैक्सेस, CGST एंड SGST, और आपका इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन भी है इसी सम में, तो आप IGST का एक कॉलम अलग बनाएंगे. कॉलम समझ में आए स्टूडेंट्स? आपको क्या निकालना है? नेट GST लायबिलिटी निकालनी है. नेट GST लायबिलिटी कैसे निकालते? फॉर्मेट क्या होता है? पहले तो आप आउटपुट टैक्स निकालते हो, मतलब जब हम गुड्स को बेचते हैं तो उस पर कितनी टैक्स लेते हैं कस्टमर से, उसमें से माइनस करेंगे जितनी टैक्स आपने भरी जब आपने गुड्स खरीदे थे, वो माइनस करेंगे. उसको बोलते हैं ITC अलाउड, ITC क्लेम्ड. तो आपने जब आउटपुट टैक्स में से ITC क्लेम कर ली, ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस को माइनस करके ऊपर सेट ऑफ करके आप लेकर आए, ठीक है, और उसको यहाँ पे लेस कर दिया, लेस क्रेडिट एडजस्टेड अगेंस्ट IGST, जो भी आपका एडजस्टमेंट बैठता है वैसा करके नेट GST लायबिलिटी निकालना है आपको. आपको याद होगा ना, मैंने आपको बताया था GST के पॉकेट में कुछ है तो IGST क्लेम कर सकते हैं, है ना. SGST के पॉकेट में से तो IGST क्लेम कर सकते हैं. IGST है तो तीनों कर सकते हैं, पर ऑर्डर में, पहले IGST, फिर CGST, फिर SGST. याद होगा आप लोगों को, ठीक है. तो अभी देखते हैं सबसे पहले उसने आउटपुट टैक्स कैसे निकाला है. आउटपुट टैक्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? जब हम गुड्स को बेचते हैं उसके ऊपर टैक्स रेट को अप्लाई करके. टैक्स रेट्स क्या है? CGST 9, SGST 9, IGST 18. ओके,
अभी देखो कैल्सी लो हाथ में, आपको पता चल जाएगा आपने बेचे कौन कौन से गुड्स हैं। ये देखो सप्लाई सप्लाई दो हैं, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई है। स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो कौन सी टैक्स एप्लीकेबल होगी? CGST, SGST. वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे मतलब मुझे इंट्रा स्टेट सप्लाई दिख रहा है 18 लाख रुपए का, 18 लैक्स का। तो 18 लैक्स पे आप मुझे बताओ 99% कितना होता है? चलो जल्दी कैलसी पे निकालो, मुझे बताओ कितना होता है 18 लैक्स का 99%? 162,000. हाँ देखो आप सीजीएसटी में लिखा हुआ है 162, एसजीएसटी में भी लिखा हुआ है 162। एक काम करो, नहीं तो लिखते जाओ मेरे साथ साथ, ऐसा नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। लिखो, ऊपर से लाइंस ड्रॉ करो पहले। स्टेटमेंट शोइंग नेट जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मेशर्स एक्स लिमिटेड। लिखो स्टेटमेंट शोइंग नेट जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मेशर्स एक्स लिमिटेड। कॉलम्स बनाइए, पर्टिकुलर्स सीजीएसटी एक कॉलम, एसजीएसटी नेक्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम आईजीएसटी। सम को ना रीड करने से पता चल जाता है कि कॉलम्स कौन कौन से बनाने हैं। अभी क्योंकि इंट्रा स्टेट भी है, इंटर स्टेट भी है, इसीलिए हम लोग को कॉलम्स अमाउंट के 3 बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख दिया आपने आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स हमेशा कैलकुलेट करते हैं सप्लाई पे जब हम सेल्स करते हैं। तो अब जब मैं सीजीएसटी की बात करूं तो मुझे इंट्रा इंट्रा देखना पड़ेगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई देखना पड़ेगा। तो वो 18 लैक्स दिख रहा है, कैलकुलेट करो 18 लैक्स का 9% 1,62,000 आएगा। मतलब सीजीएसटी में भी 1,62,000 लिखोगे, एसजीएसटी में भी 1,62,000 लिखोगे। इतना हो जाए तो मुझे बताइए। Yes, students. Yes, 162 162 आपने दोनों में लिखा होगा। अब देखो आपने इंटर स्टेट सप्लाई भी तो किया है 13 लैक्स का, ठीक है? तो 13 लैक्स का 18% निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में 18 दिया हुआ है। क्वेश्चन में आईजीएसटी का रेट 18 दिया हुआ है ना? बोलो 13 लैक्स का 18%। 2,34,000. हाँ बराबर है, 2,34,000 करेक्ट है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। आपको आईटीसी लेस करना है, ठीक है? लिखो लेस आईटीसी क्लेम या अलाउड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से, आईटीसी है ना, कैसे क्लेम करेंगे? जब ओपनिंग होता है ना तो आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट अलग से बनाना पड़ेगा। तो जो अभी आपने टेबल बनाई है ना उसमें आप 8 to 9 लाइंस छोड़ के नीचे आ जाइए। और ये आपको ऊपर वाली टेबल दिख रही है सबको? ये वाली टेबल बनानी है। लिखो स्टेटमेंट ऑफ आईटीसी, स्टेटमेंट ऑफ आईटीसी। कॉलम्स बनाएंगे सेम, पर्टिकुलर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस जो कि आपको क्वेश्चन में मिला हुआ है। ओपनिंग बैलेंस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मिला हुआ है, मतलब ये जो है ना इसका भी प्रोविजन आपको करना पड़ेगा। आईटीसी एट द बिगिनिंग अभी का तो करना ही करना है, इसका भी करना है, ठीक है?
तो मतलब दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो पहले लिखो ओपनिंग, सीजीएसटी में लिखेंगे 130, एसजीएसटी में भी लिखेंगे 130 और आईजीएसटी में लिखेंगे 170। ऑलरेडी मिला हुआ है, यू जस्ट हैव टू कॉपी डाउन। ओपनिंग आईजीएसटी कहते हैं इसे। अब कैसे निकालेंगे करंट ईयर का आईजीएसटी? लिखो ऐड ITC for tax period, current tax period. Add ITC for current tax period. The one we had wrote in the beginning was opening balance of ITC. तो आप भी लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, उसमें ऐड करेंगे करंट ईयर का जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे बताएंगे आप, आईटीसी कैलकुलेट करने के लिए टैक्सेस का रेट ऑलरेडी अवेलेबल है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी 9918 है ना। तो अभी देखो आईटीसी किस पे निकालते हैं? परचेजेस पे निकालते हैं स्टूडेंट्स, परचेज पे। तो अभी आप मुझे बता सकते हो इंट्रा स्टेट परचेज कितना है? इंट्रा स्टेट परचेज कितना है? इंट्रा स्टेट परचेज स्टूडेंट्स, इंट्रा स्टेट परचेज कितना है आपका? 13 lakhs का 99% आपको निकालना पड़ेगा इंट्रा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का रेट क्या है? 9%। वेरी गुड। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 13 lakhs का 9%? 1,17,000। वेरी गुड। तो आप सीजीएसटी के कॉलम में भी लिखेंगे 170, एसजीएसटी के कॉलम में भी लिखेंगे 170। देखो कि यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, एड आईटीसी फॉर द करंट ईयर 1,17,000 सीजीएसटी के कॉलम में और 1,17,000 आईजीएसटी के कॉलम में। सिमिलरली आपको इंटर स्टेट परचेज का भी करना है। इंटर स्टेट मतलब आउटसाइड द स्टेट परचेज 1,50,000 है, 15 lakhs नहीं है स्टूडेंट्स, 1,50,000 है, उसका 18% निकालना है क्योंकि आईजीएसटी 18 है। 27,000। यस वेरी गुड, 27। वेरी गुड। तो अभी आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एक ओपनिंग और एक करंट ईयर का, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा ना टोटल क्रेडिट कितना है। लिखो नेक्स्ट लाइन पे टोटल क्रेडिट ऑफ आईटीसी, टोटल, या आप सिंपल भी लिख सकते हो टोटल आईटीसी, टोटल आईटीसी। ओके, सो लिखो दोनों को ऐड करके पहला कितना आ रहा है सीजीएसटी में? सीजीएसटी का टोटल स्टूडेंट्स कम ऑन क्विकली, सीजीएसटी का टोटल बताएंगे? टू लैख 47,000। यस, एसजीएसटी का टोटल? सेम। सेम 247। और आईजीएसटी का टोटल? वन लैख 97। 1,97,000। वेरी गुड, 1,97,000, दैट्स करेक्ट। सो नाउ व्हाट यू विल डू, अभी जो आपने ऊपर स्टेटमेंट बनाया था ना नेट जीएसटी लाइबिलिटी निकालने का, उसमें आपने लिखा था आउटपुट टैक्स में से लेस आईटीसी, आईटीसी अलाउड। तो अब कितना आईटीसी अलाउ करना है बोलो? टोटल जो अभी निकाला हमने, लिखो लेस आईटीसी अलाउड, सीजीएसटी में लिखेंगे 247 ब्रैकेट में
SGST में लिखेंगे 247 ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस करना है ना अपने को, और IGST में लिखेंगे 1,97,000 ब्रैकेट में, जो अभी अभी आपने कैलकुलेट किए 247, 197। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे बताएंगे टोटल कितना आ रहा है, मतलब नीचे माइनस करने के बाद। CGST 85,000. वेरी गुड, CGST 85,000 पर ब्रैकेट में आ रहा है ना, मतलब नेगेटिव आंसर Yes, आ रहा है। ma'am. Yes, तो आप जो yes. नेगेटिव आ रहा है ना उसको आप ब्रैकेट में दिखाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यस, कम ऑन टेल मी, SGST का आंसर कितना आ रहा है 85,000. ब्रैकेट में नेगेटिव, और IGST कितना आ रहा है? 37,000. ओके, 37 पॉजिटिव आ रहा है, राइट? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। वन मिनट। हाँ, ओके। हाँ, सो यस, अभी देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। अब है ना, SGST और SGST को, CGST और SGST को देखना। उसमें क्या था ना, आपका जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी था वो कम था और ITC ज्यादा था। उसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से, अभी हम प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, जो हमने पहले थ्योरेटिकली सीखा है ना, उसका भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीख रहे हो आप। CGST का आउटपुट, अभी CGST को देखो, सिर्फ CGST को देखिए। CGST का जो आउटपुट है ना वो कम है और ITC ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, जब आपने गुड्स बेचे थे तब आपने कम टैक्स ली थी, मतलब कम गुड्स बिके तो टैक्स भी कम हाथ में आई है। लेकिन आपने गुड्स ज्यादा खरीद के रख लिए थे आपने अपने शॉप पे, है ना। हो सकता है हमने ज्यादा गुड्स खरीदे हो लेकिन हम बेच नहीं पाए हो, बहुत बार ऐसा होता है, बिजनेस डाउन चलता है। तो उस टाइम पे ITC ज्यादा होता है, मतलब आपने टैक्स आपने अपने जेब से ज्यादा भरी हुई है और जो वसूल की है ना टैक्स वो कम की है ना। इसका मतलब क्या है कि 247 में से 162, 247 आपने टैक्स भरी थी, किसको? होलसेलर को। आप रिटेलर हो तो आपने टैक्स भरी कितनी थी? 247, उसमें से आपने वसूल कितनी की? 162। स्टूडेंट्स 162 टैक्स वसूल किए, तो बाकी और कितनी वसूल करना बाकी है? 85,000। इतना सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. हाँ, इतना सबको समझ में आया? Yes, ठीक है। ma'am. अभी इसका मतलब क्या है कि 85,000 आप और वसूल कर सकते हो गुड्स को बेचकर, लेकिन अभी तो टाइम नहीं है, गुड्स को बेच नहीं सकती हो, पीरियड एंड हो गया। तो गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देती है कि अगर IGST में बैलेंस बाकी है तो उसमें से आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि CGST को SGST में से नहीं कर सकते ना। इसके लिए पहले IGST को IGST में से करो। हाँ, तो किया ना, 234 में से 197 किया ना, IGST को IGST में से किया, तो भी IGST में से 37 का बैलेंस बच रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो बच रहा है, 37 बच रहा है। Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि इसमें आपने टैक्स वसूल ज्यादा की है और भरी कम में, भरी कम थी, तो आपके पास 37 का बैलेंस अभी भी है पॉकेट में।
अभी भी 37 पॉकेट में है, तो 37 में से क्यों ना मैं ये, सॉरी, सीजीएसटी कितना है आपका 85 माइनस में, तो 85 में से एटलीस्ट 37 तो सेट ऑफ कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? कर सकते हो मैम। बिल्कुल कर Yes, सकते sir. हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब 85 में से 37 को सेट ऑफ कर दो, तो बाकी बचेगा 48। स्टूडेंट्स करके तो देखो, ये बराबर है क्या कि प्रिंटिंग मिस्टेक है 48? 85 में से सही 37 है को मैम। 48 सही है। बराबर है ना? तो ये एक्सेस आईटीसी आपको और क्लेम, मतलब 85 में से 37 तो सेट ऑफ कर लिया, बाकी 48 अभी नेक्स्ट टाइम और कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम और करने को आपको मिलेगा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? क्या बोला मैंने? तो अभी आप क्या करेंगे, 85 जो आपने नेगेटिव में लिखा है ना, उसके नीचे लिखेंगे। देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, लेस सीजीएसटी का क्रेडिट एडजस्टेड अगेंस्ट आईजीएसटी। कितना क्लियर कट लिखा हुआ है, पढ़ के ही समझ में आ जाए। ऊपर से मैंने एक्सप्लेन भी किया, लेस जो सीजीएसटी का क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब जो अभी तक और मेरा आईटीसी बहुत पड़ा हुआ है, 85,000 का आईटीसी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उसको मैं आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ। लिखो, 85 में से 37 आपने एडजस्ट कर लिया, लिखो लेस सीजीएसटी क्रेडिट एडजस्टेड अगेंस्ट आईजीएसटी, क्योंकि आईजीएसटी में से पहले आईजीएसटी करना है, फिर उसके बाद अगर आईजीएसटी और बचता है तो सीजीएसटी में से मदद लेनी है, और बचता है तो एसजीएसटी में से मदद लेनी है। पर आईजीएसटी फिनिश हो गया ना, देखो ना 37 का 37 फिनिश हो गया, 37 का 37 फिनिश हो गया, तो बचा ही नहीं आईजीएसटी का, तो एसजीएसटी में से कहां से मदद लेंगे? आप समझ पा रहे हैं? तो सिर्फ सीजीएसटी में से ऑर्डर में जाने का, पहले आईजीएसटी में से आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, और वैसे ही सीजीएसटी में से पहले सीजीएसटी फिर आईजीएसटी, ठीक है? और एसजीएसटी में भी वैसे ही, पहले एसजीएसटी फिर आईजीएसटी। तो करो, 85 में से 37 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका? -48। हाँ, मतलब एक्सेस आईटीसी बोलते हैं इसको, एक्सेस आईटीसी। लेकिन आपका नेट जीएसटी लाइबिलिटी क्या होगा? नील। जीएसटी तो आपको भरनी नहीं है ना, इनफेक्ट आप ज्यादा भर के आए हो 247 गवर्नमेंट को, होलसेलर को, सॉरी, होलसेलर को इनफेक्ट आप ज्यादा भर के आए हो। आपने कस्टमर से अभी उतनी वसूल भी नहीं की है, अभी तक 162 वसूल की है। गवर्नमेंट को क्यों भरोगे आप जीएसटी? आप ऑलरेडी भर के आ चुके हो ज्यादा। इनफैक्ट आपको नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट आईटीसी और क्लेम करने को देगी 48,000, मतलब जीएसटी नील। जीएसटी लाइबिलिटी क्या होगी इधर? नील। बिल्कुल इसके जैसे ही लिखो, या 37 के नीचे लिखो 48 और नेट जीएसटी लाइबिलिटी लिखो लास्ट में नील, वो चलेगा शफल करके लिखेंगे तो, ठीक है? तो -85 में से 37 सेट ऑफ हो गया, तो बाकी बचा 48। ये जो 48 है ना, इसका हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सेस आईटीसी कैरी फॉरवर्ड। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, सिर्फ मैंने ये कॉलम दे दिया, ये कॉलम की डिटेल्स दे दी कि आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है सीजीएसटी 162, आईटीसी अलाउड है 247, तो मुझे बताओ नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितनी होगी और एक्सेस आईटीसी कितना होगा? ये सिर्फ ये वाला कॉलम मैंने अगर सेंटेंस के फॉर्म में फ्रेम करके दे दिया, तो आपको मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे, नेट जीएसटी लाइबिलिटी कितनी होगी और एक्सेस आईटीसी कितना होगा, तो नेट जीएसटी लाइबिलिटी होगी नील और एक्सेस आईटीसी होगा 48। आया स्टूडेंट समझ में? एमसीक्यूज के फॉर्मेट में ये आ सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट अभी आ जाओ एसजीएसटी में, तो आ जाओ जरा, एक काम करो ना, पहले आईजीएसटी में आ जाओ। देखो 37 बचा था, तो 37 का 37 तो मैं सीजीएसटी के एडजस्ट कर लिया, सीजीएसटी का क्रेडिट। यस और नो स्टूडेंट्स? यस मैम। तो आईजीएसटी के पॉकेट में खत्म हो गया ना सब, 37 माइनस 37, तो कोई आईटीसी बचा? नील। जीएसटी लायबिलिटी भरनी है? नील। दोनों नील हो गया। आईजीएसटी में कुछ बचा ही नहीं, ना भरना है ना लेना है, ना कुछ आईटीसी क्लेम करने का फ्यूचर में, कुछ नहीं, एडजस्ट हो गया। आईजीएसटी का क्रेडिट सॉरी, आईजीएसटी का जो बैलेंस बचा था उसको मैंने सीजीएसटी के क्रेडिट के साथ एडजस्ट कर लिया।
तो 37 एडजस्ट कर लिया, तो 37 को मैंने यूज कर लिया। अगर यूज कर लिया तो मेरे पास बचा ही नहीं, तो 37 में से -37, इसीलिए नील नील। मतलब ना मेरे पास एक्सेस कोई आईटीसी है और ना ही कोई जीएसटी लाइबिलिटी है जो मैं गवर्नमेंट को पहुंचाऊं आईजीएसटी के नाम पे। चलो ये भी कर लिया आपने, लिख लिया सेम। अब आ जाओ एसजीएसटी में। ये देखो आपके पास -85 बैलेंस था। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैंने होलसेलर को 247 टैक्स भरी है, लेकिन कस्टमर से वसूल 162 की है। तो अभी भी मुझे वसूल और कितना करना है, 85 और 85 वसूल करना है। जब मुझे कस्टमर से और 85 वसूल करना है तो मैं गवर्नमेंट को क्यों भर के आऊंगी। इनफैक्ट मैं ऑलरेडी परचेस करने के टाइम पे ज्यादा टैक्स भर के आई हूँ। वो होलसेलर का काम है पहुंचाना 247, मैं ऑलरेडी भर के आई हूँ। तो अब क्यों मैं गवर्नमेंट को पहुंचाऊंगी टैक्स, जब मैंने उतनी वसूल ही नहीं की है। बताओ 247 से अगर मैं ज्यादा वसूल करूंगी ना तो गवर्नमेंट को पहुंचाऊंगी। तो नेट जीएसटी लायबिलिटी मेरी क्या होगी स्टूडेंट्स, नील। अच्छा बताओ आपके जेब में और कितना आईटीसी का बैलेंस बचा था, 85। मतलब नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट क्वार्टर आप 85 और क्लेम कर सकते हो। क्लेम करना मतलब लेस करना। क्या लेस करते हैं, आईटीसी। कितना आईटीसी बचा है एसजीएसटी के पॉकेट में, 85। 85 नेगेटिव बच रहे, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आपका आईटीसी ज्यादा है और आउटपुट टैक्स कम में है। आपके हाथ में टैक्स कम आई है और आपने भरा ज्यादा है। तो जो भरा ज्यादा है ना उसको आप नेक्स्ट टाइम क्लेम कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड लिखा भी हुआ है, लास्ट लाइन पढ़ो, एक्सेस आईटीसी कैरी फॉरवर्ड, मतलब नेक्स्ट टाइम हम इसको क्लेम करने को अलाउ कर रहे हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस मैम। बिल्कुल ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, या जो ये नेट जीएसटी लायबिलिटी है लास्ट में कॉलम बना दो और एक्सेस आईटीसी पहले बना दोगे तो भी कॉलम चलेगा। मतलब आपको समझ में आए सिर्फ कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अभी हम सॉल्व करते हैं ये सेकेंड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इधर, मिस्टर ए हैज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ये सॉल्व करते हैं फिर हम वाइंड अप करेंगे लेक्चर। और फिर मेरे पास कुछ और भी सम्स हैं जो हम थर्सडे को करेंगे और चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। मतलब एक लेक्चर मेरे हिसाब से बहुत है, एक 1.5 लेक्चर मतलब वाइंड अप हो जाएगा। थर्सडे को मेरा सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, so let's quickly begin with problem number 2. Mr. A has output tax liability of 1 lakhs. कितनी लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑलरेडी बताई हुई है। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इज ऑफ ₹1 लाख टुवर्ड्स सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। मतलब ये इंट्रा स्टेट की बात करता है। जस्ट अ मिनट, हाँ, लेट मी प्लग इन चार्जर। वन मिनट। एक्चुअली स्टूडेंट्स लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है, अपने को फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। सो फिर से ज्वाइन करें।